So the last concept in Mole's chapter is this empirical and molecular formula. Empirical and molecular formula. All right. So the good thing is कि वालेकुम सलाम. The good thing is कि इस concept में there is hardly any new thing that we have to add or teach in AS. It's exactly the same, but amazingly, you get a lot of questions from this concept or calculation in paper, even paper 2 as well. तो उसको हम थोड़ा डिटेल में रिव्यू करेंगे. तो empirical formula को अगर हम define कर लें तो it's like the formula that gives the simplest whole number ratio of the atoms of each element. Of atoms of each element in a compound. ठीक है, इसको हम बोलते हैं empirical formula. Whereas your molecular formula, that's like the one that gives us the total number of atoms of each element. ये आप नोट्स साथ साथ लेते जाएं, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा तो will not be waiting too much. So molecular formula gives the total number of atoms of each element in the compound. So once you'll solve the worksheet that I'll send today, उसमें आप देखेंगे MCQs भी हैं, structured questions भी हैं. तो you'll see in structured question of moles, many questions simply start with the definition, like definition of mole or definition of molecular formula or empirical formula like that. तो ये इतनी मुश्किल चीजें नहीं होती हैं. 2 marks वगैरह इस तरह से solid marks होते हैं. तो आप ना लूज करें तो अच्छी बात है, क्योंकि कैलकुलेशन उसके बाद आती है. तो many compounds empirical and molecular formulas are like same. Like जैसे ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का molecular formula is like C6H12O6. ये इसका molecular formula. लेकिन जब इस molecular formula से मैं इसका empirical formula बनाऊंगा, I'll simplify the ratio, which is like 6:12:6. That simplifies to 1:2:1. That's the simplest possible ratio, whole number ratio में रहना हमने. तो इससे जो फॉर्मूला मेरा बन जाएगा, इट वुड बी 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन CH2O. ये ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला है और ये ग्लूकोज का लाइक मोलिकुलर फॉर्मूला है. सो इफ आई एम गिवन द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, आई कैन ऑलवेज टेल द एम्पिरिकल फॉर्मूला राइट अवे. सिंपली इसको सिंपलीफाई करना है आपको. अच्छा, अब जिस तरह से आप मोलिकुलर फॉर्मूला से कंपाउंड का MR निकाल लेते हैं, ठीक है, एटॉमिक मैसेज को मल्टीप्लाई करके और सारा, उसी तरह एम्पिरिकल फॉर्मूला का मैस भी निकाल लेते हैं हम. दैट्स लाइक एटॉमिक मैस ऑफ कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला मैस की हमें आगे जरूरत पड़ेगी. तो ये तो इन दोनों की डेफिनेशंस हैं, बड़ी बेसिक सी, और एक एग्जांपल्स मैंने छोटी दी है कि जिससे पता चल रहा है कि ग्लूकोज इज लाइक वन कंपाउंड हैविंग डिफरेंट एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अब इस टॉपिक में जो कैलकुलेशंस हैं उनमें क्या होगा कि हम लोग ये फॉर्मूलाज यूज करते हैं टू फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड. अगर आपने किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो उसके लिए वी यूज दिस रिलेशन, दैट्स लाइक n इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला. n इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला. अच्छा, अब इसमें n इज अ होल नंबर वैल्यू. This n is a whole number value which actually is equal to the MR of compound upon the empirical formula mass. इसको मैं शॉर्ट करके EFM लिख रहा हूँ, empirical formula mass. So आप n निकालेंगे by dividing the MR of compound with the empirical formula mass of the compound. ये दो रिलेशंस हम यूज करते हैं. पहले आप कंपाउंड का empirical formula फाइंड करेंगे, उसको फिर n से मल्टीप्लाई करेंगे, you get the molecular formula of the compound. So this is again something that you guys have studied
already in IGCSE, O level, etc. तो अब मैं जरा सा एक अटेंडेंस भी ले लूं. Sure. Before I go on to any calculation, let's just write down this concept also. Okay, many compounds have same molecular and empirical formula. ठीक है, like majority compounds ऐसे ही हैं जिनका empirical और molecular formula same होता है. For example, अगर अब क्लास अगर फिजिकली हो तो फिर मैं नॉर्मली स्टूडेंट से इस पॉइंट पे पूछता हूँ कि टेल मी सम रैंडम कंपाउंड्स यू नो, जो भी आपके माइंड में आता है. तो उसमें मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो कंपाउंड बता रहे होते हैं they actually fall to this example. For example, अगर आपके माइंड में आ रहा है सल्फ्यूरिक एसिड, अब सल्फ्यूरिक एसिड्स molecular formula is this, but its empirical formula is also same because इसमें जो रेशियो एलिमेंट्स की वो 2:1:4 है. सल्फर 1 है, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 4. So when in a compound one of the elements ratio is whole number lowest 1, तो फिर आप उसको further simplify नहीं करेंगे. You won't write it like 1:0.5:2. 1 और 2 तो ठीक है, but 0.5 कोई एटम नहीं हो सकता. तो sulfuric acid for example is one compound having same empirical and molecular formula. इसी तरह अमोनिया आप देखो NH3 में 1:3 है, वाटर में 1:2 है. So all और सोडियम क्लोराइड आप देख लें, ये कॉमन कंपाउंड्स, इन सारों के empirical molecular formula सेम है. So such kind of things are like asked in MCQs where examiner could simply ask you which of the following compounds has same empirical or molecular formula. तो उसमें आपने कोई ये complicated equations use करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट बता सकते हैं. अच्छा, अब ये equations जो ऊपर है ये आगे कैलकुलेशन में फिर लिख दूंगा. I use this space to add one more concept before we go to calculations. अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत दफा क्या होता है कि एग्जामिनर आपको कोई कंपाउंड दे देगा ऑलरेडी क्वेश्चन में, और उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर को देख के आपको उसका मोलेकुलर फार्मूला या एम्पिरिकल फार्मूला बताने के लिए आ सकता है. Now let's suppose if this is the compound that you had been given in the question already, that's an alcohol basically, OH group लगे हैं इसमें, और इसको देख के you were supposed to suggest the molecular formula and the empirical formula of this compound. तो उसके लिए आपने करना सिंपल ये होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में वी राइट द कार्बन फर्स्ट, उसके बाद हम हाइड्रोजन लिखते हैं सीक्वेंस में, फिर थर्ड कोई एलिमेंट हो वो लिखते हैं. सो यू राइट डाउन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, द एलिमेंट्स इन इट, एंड देन जस्ट काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट. टोटल जो भी हमें नजर आ रहा है वो काउंट करके नीचे सुपरस्क्रिप्ट ऐसे सबस्क्रिप्ट लिख देंगे. सो आई गॉट 1 2 3 4 कार्बन हियर, hydrogens 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and there are 2 oxygen, 1 and 1 2. So C4H10O2 is the molecular formula of this compound. But if I'm supposed to write the empirical formula, तो इसको आप simplify कर दें ratio को, तो ratio is like 4:10:2. So आपको 2 से divide कर दें तो it would be like 1:5:2. इस simplified ratio से जो formula बनेगा, that would be the empirical formula of the compound. That is like 2 carbon here, C2H5O. ठीक है ना, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा, ये इसका मोलेकुलर फार्मूला है. ये एग्जांपल मैंने आपको बताई है फॉर सच एमसीक्यूज वेयर एग्जामिनर गिव्स यू द स्ट्रक्चर इन क्वेश्चन एंड इट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट फॉर द एम्पिरिकल एंड मोलेकुलर फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड. तो उसमें टेबल बना होगा, एम्पिरिकल फार्मूला का अलग, मोलेकुलर फार्मूला का अलग, इस तरह से. तो आपको पिक करना पड़ेगा ऑप्शन करेक्ट. तो उसका मेथड यही है कि आप अपना फार्मूला बनाएं और फिर उसके बाद उसको मैच कर लें ऑप्शन से. सर आपने ओ लेवल्स के अंदर OH अलग से नहीं लिखवाया था एंड पे? अस्तगफिरुल्लाह. ओ लेवल तो बेटा मुझे ऑनेस्टली याद नहीं रहेगा. OH ये वाला इसकी बात कर रहे हो? जी, एंड पे OH अलग से. हाँ नहीं, जैसे ये लिखा हुआ है जी. हाँ, तो इससे क्या इशू है? देखो बात ये कि
ये इधर तो मैंने OH को ओपन कर दिया, इधर मैंने ओपन नहीं किया बस। अगर भी इसको भी मैं ओपन करूंगा तो O-OH ही आएगा ना, एलिमेंट तो सेपरेट ही है। तो अगर आपने इसको बॉन्ड ओपन करके भी लिखना है तो इट वुड बी लाइक O bond H, इस तरह। That won't change the fact कि there are two oxygens in it। बाकी दूसरी बात ये है कि ये OH ग्रुप तो कहीं भी लगा हो सकता है, राइट लेफ्ट इधर कहीं भी। सर नहीं, फॉर्मूला के अंदर OH अलग पेंट से नहीं अलग से नहीं लिखा होता। बेटा अल्कोहल का वो तो जनरल फार्मूला है ना, CnH2n + 1 OH, वो और चीज है। ये इसका जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूला में मॉलिक्यूलर फार्मूला में फर्क होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला में वी आर नॉट सपोज्ड टू हाईलाइट के व्हाट फंक्शनल ग्रुप्स इट हैज एंड ऑल। जनरल फार्मूला में हमें फंक्शनल ग्रुप को हाईलाइट करना होता है, इसलिए हम OH को अलग से लिखते हैं। और ये इस जनरल फार्मूला को तो फॉलो भी नहीं कर रहा है, इसमें 2 OH है। मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हुए आप इसको जैसे मर्जी टेढ़ा मेढ़ा करके लिखते हैं, आपने एलिमेंट्स के नीचे उनका टोटल नंबर लिखना है बस, यहाँ OH नहीं लिखेंगे। अच्छा अब देखें, ये तो बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो मतलब आते हैं इससे एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला कॉन्सेप्ट से। अब नेक्स्ट इसमें कैलकुलेशंस की तरफ आते हैं, थोड़ा वो ट्राई करते हैं। So ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। So there is this organic compound CXHY और उसका आपको MR गिवन है। It was found to contain 72 gram carbon and 6 grams of hydrogen. Find molecular formula of compound। MF में molecular formula को लिख रहा हूँ, पेपर में आप पूरा वर्ड्स में लिखें। अच्छा अब ये एक टिपिकल क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से आ सकता है। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन बाय द वे, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आपने इसको समझना है, उसके बाद आपने ट्राई करना है। जो भी आपको कंपाउंड मिलेगा क्वेश्चन में नेचुरली जिसका आप मोलेकुलर फार्मूला फाइंड कर रहे हैं, यू विल बी टोल्ड के व्हाट एलिमेंट्स इट हैज और किस एलिमेंट का मास कितना है उसमें, ठीक है। या तो एलिमेंट्स का मास गिवन होगा या उनकी परसेंटेज गिवन होगी, ठीक है ना। 72 ग्राम्स है या अदरवाइज अगर कोई 92% इस तरह लिखा हुआ है, तो वट एवर मास और परसेंटेज गिवन, आपने करना क्या होगा, सबसे पहले आप एलिमेंट्स लिख लोगे उस कंपाउंड के। यू गॉट कार्बन एंड हाइड्रोजन। सो इफ इट्स एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगेन पुट कार्बन फर्स्ट, फिर हाइड्रोजन, फिर कोई थर्ड एलिमेंट लिखें। इनके बीच में यू कैन पुट दिस रेशियो साइन, इस लाइक। फिर आप उसके बाद उनका मास लिख लें जो क्वेश्चन में गिवन है। अगर मास नहीं है, परसेंटेज है, तो वो लिख लें यहाँ पर, ठीक है। सो 72 ग्राम इज कार्बन, हाइड्रोजन इज 6 ग्राम। इसके बाद आपने इनके मोल्स निकाल के तो उनको सिंप्लीफाइड रेशियो में कन्वर्ट करना है। 72 के अगर मैं मोल्स निकालूंगा तो आई डिवाइडेड बाय द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन व्हिच इज 12। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, इधर आ जाएगा मेरे पास ये 6:6, और इसको सिंप्लीफाई आप कर दो तो ये 1:1 आ जाएगा। ये सिंप्लीफाइड रेशियो है। इस रेशियो से आप फॉर्मूला बनाओगे तो ये बन जाएगा CH। अब दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है ना। ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है जो सिंप्लीफाइड रेशियो से बना है। So if I wish to find the molecular formula of this compound, तो उसके लिए अब मैं पहले इसका empirical formula mass निकाल लूंगा। तो empirical formula mass would be CH का carbon 12, hydrogen 1, 12 plus 1 13। अब आप N की वैल्यू निकाल लें जो मैंने फॉर्मूला लिखा था लास्ट पेज पे। तो N is like MR of compound 78 divided by empirical formula mass 13। इसको आप डिवाइड करेंगे, ये होल नंबर वैल्यू आएगी। अगर नहीं आती तो आपने इसको होल नंबर बना लेना है। 5.8 है या 5.9 है, 6.2 है, तो यू राइट इट लाइक 6। इसके बाद आप इसका मोलेकुलर फार्मूला फाइंड करेंगे। तो मोलेकुलर फार्मूला इक्वल्स टू N इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। N हमने निकाल लिया है, which is 6 इनटू एम्पिरिकल फार्मूला इज CH। इसका आंसर बन जाएगा C6H6। So this compound's molecular formula is C6H6। You can always be certain of your answer कि ये ठीक है कि नहीं। आप इसका रफ में जाके MR निकाल लें तो वो वही आएगा जो पेपर में आपको दिया हुआ एग्जामिनर ने, like 6 times 12, 72 plus 6, 78।
तो ये एक बड़ा बेसिक सा मैंने एमसीक्यूज लेवल क्वेश्चन सॉल्व किए, जिसको थोड़ी वर्किंग करके दिखाया है, तो शायद आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है या वर्किंग ज़्यादा नज़र आ रही है, अदरवाइज इट वोंट टेक दैट लॉन्ग। तो अगर इसमें कोई क्वेश्चन बड़ा आप पूछ लें, ये टेक्निकली सारा ओ लेवल की चीज़ है, कोई इसमें नई चीज़ मैंने आपको बताई नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा, अब आप लोग जरा ट्राई करें, एक दो क्वेश्चन में लिखता हूँ उनको, फिर मैं भी सॉल्व करूंगा। So there is this organic compound CXHYOZ. There is this organic compound which has three elements in it: carbon, hydrogen, oxygen. कार्बन के मोल्स X, इसके Y, इसके Z हमें नहीं पता कौन है और कितने मोल हैं किसके। इसका कंपाउंड का MR is 180 and it contains 72 grams of carbon, 96 grams of oxygen and 12 grams of hydrogen. So using this information, we have to find the molecular formula of the compound. इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करें, फिर मैं सॉल्व कर देता हूँ। पहले एम्पिरिकल फार्मूला निकालें, फिर उसका एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल लें और वहां से आपको उसका मोलिकुलर फार्मूला मिल जाएगा। जी बेटा, कोई आंसर निकला किसी का? Sir, C6H12O6. Yes, glucose, that's correct. So the elements that we have in it, like carbon, hydrogen, oxygen, the mass of carbon is 72, hydrogen is 12, oxygen is 96. Carbon divided by 12 atomic mass, hydrogen को 1 से divide करेंगे, 2 से नहीं, atomic mass. Oxygen divided by 16, the atomic mass of oxygen. That makes it 6, 12, 6. So simplified form it would be 1:2:1. That gives me CH2O. That's the empirical formula of the compound. और इसी जगह हम इसका empirical formula mass निकाल लेते हैं, तो carbon 12, hydrogen 2 plus oxygen 16. That makes it 30. So इस compound का जो empirical formula है, see remember
empirical formula does not exist. ये compound इस form में exist नहीं करता, ये theoretical thing है, but उसका mass भी हम theoretically निकाल सकते हैं. तो that's empirical formula mass. इससे मैं n की value निकाल लूँगा. N is like MR of compound 180 upon 30. That is 6 also. So molecular formula के लिए it will be 6 into its empirical formula, which is CH2O. So C6H12O6. Again, if you do it in rough, इसका MR आप निकालो तो वो 180 आएगा. ठीक है, just to cross check your answer whether it's correct or not. So just another example of empirical molecular formula calculation. Sometime at this point when you reach to the ratios, तो you get the ratio in decimal places, तो फिर आप उनको smallest ratio से divide करते हैं, या at time over here you have to multiply the ratios by some number which turns them all to whole number value. उसकी एक एग्जांपल मैं आपको कराता हूँ, तो उसको ट्राई करें. ये सब पास पेपर के क्वेश्चंस हैं, फ्रॉम इजियर टू स्लाइटली चैलेंजिंग, बट बहुत कोई मुश्किल नहीं है कॉन्सेप्ट इसमें. सो दिस ऑर्गेनिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसको वो कह रहा है W, एंड द क्वेश्चन टेल्स यू के इट कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. इसमें कार्बन की जो परसेंटेज है वो दैट्स गिवन 35.8%. Hydrogen is 4.5%. Oxygen is 59.7%. So just using this, you have to find the molecular formula of the compound, whereas the MR of W is 134. इस क्वेश्चन को ट्राई करें, इसमें आपको मे बी रेशियोज को सिंप्लीफाई करते हुए you might have to multiply them with some whole number value.
So once you divide the percentages given in question with the atomic masses, you get these ratios. और इसमें further आपने इसको जो smallest ratio है उससे divide कर देना सबको, which is like 2.98. तो इस स्टेप के बाद भी अगर ये रेशियो सिंप्लीफाई नहीं होती तो आपने होल नंबर में जबरदस्ती कन्वर्ट नहीं करना, ठीक है? देन यू हैव टू मल्टीप्लाई देम विद सम नंबर दैट टर्न्स देम टू अ होल नंबर. दिस वुड बी लाइक 1. तो 4.5 divided by 2.98, that be 1.5. 3.73 divided by 2.98. That's 1.25. अब आप देखें ये मेरे पास 1:1.5 1.25 आ रही है, ठीक है? यहाँ कुछ स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि इसको 2 कर दिया या इसको 1 कर दिया, इसको ऐसा नहीं है. जब आप रेशियो से फर्दर रेशियो निकालते हैं और वो होल नंबर में नहीं आ रही, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज रेशियोज विद अ होल नंबर वैल्यू, जिससे ये सारे जो है वो इवेंचुअली होल नंबर में खुद ही कन्वर्ट हो जाए. देखिए, तो अब आप देखें अगर मैं इन सारी रेशियोज को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, बट ये होल नंबर में नहीं आएगा. इसी तरह से अगर आप इनको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 3 होल नंबर हो जाएगा, बट दैट विल नॉट बी होल नंबर. 1.5 into 3 विल बी लाइक 4.5 आई गेस. तो उसको फिर मुझे राउंड ऑफ करना पड़ेगा. इसको अगर 3 को मैं 1.25 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो भी राइट अवे होल नंबर नहीं आ रहा, 3.75 आ रहा है. बट अगर इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से, so this will turn 4 होल नंबर. ये हो जाएगा 1.5 into 4 6, और 1.25 into 4 से भी ये 5 में हो जाएगा. तो 4 से मल्टीप्लाई करने से all these values turn into whole number. That would be 4:6:4. So 5 I guess over here. So 4:6:5. This is the empirical formula of the compound. इससे जो मेरे पास empirical formula बनेगा that will be C4H6O5. इसका आप empirical formula mass निकाल लें again उसी तरह से जैसे मैंने बताया था. तो 12 times 4 कार्बन के लिए प्लस हाइड्रोजन का 6 प्लस ऑक्सीजन 16 times 5. इसको आप मल्टीप्लाई ऐड करें. 48 plus 6 54 and 16 into 5 plus 54 134. अब आप देखें इस कंपाउंड का जो एम्पिरिकल फार्मूला मैस है वो भी इसके mr के इक्वल आ रहा है. तो दैट मीन्स कि इसके जो वैल्यू ऑफ n आएगी mr अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मैस दैट वुड बी 1. तो जब 1 आ गई तो मोलिकुलर फार्मूला वुड बी नाउ 1 into एम्पिरिकल फार्मूला, दैट्स लाइक C4H6O5. तो इसका मोलिकुलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला सेम है, ठीक है ना? जो मैंने आपको बहुत पहले एग्जांपल में बताया था कि मेनी कंपाउंड्स एम्पिरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूलाज आर लाइक सेम. उन कंपाउंड के जो वैल्यू ऑफ n है वो 1 आती है. So this is the molecular formula of the compound. अब ये पास पेपर का क्वेश्चन है फॉर अबाउट 4 मार्क्स. इसमें कोई क्वेश्चन है, डाउट है, आप पूछ लें. ये वर्कशीट मैं आपको दूंगा, उसमें इस तरह के काफी क्वेश्चंस हैं, वो आप ट्राई करें खुद से भी. Now this thing completes our moles concept. अब since classes physically नहीं हो रही तो I really want to know what you guys are actually studying and everything.